Viewers, we are probably just weeks away from the announcement of the dates for 2024 elections, if not months away. But even today, it appears the INDIA bloc is still in two minds on whether they need to contest with a PM face or without. The fourth meeting of this alliance threw up a surprise for many when Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal proposed the name of Mallikarjun Kharge as the PM face, according to sources. They believe the alliance must have a convener and a face. But today there are voices within the same grouping that suggest otherwise. Nitish Kumar said today he has no qualms with not being projected as the PM face. Senior leader Sharad Pawar though said that there shouldn't be a PM face at all for the alliance to be kept together. यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा। कहा गया सर आप नाराज हैं? बस नहीं भाई, गलत नहीं बोले, हम जरा भी नाराज नहीं है भैया। 30 मई को कह रहा था तो हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिए, कुछ से कुछ बोल देता है, लेकिन हम कहीं कुछ और नहीं बोलते हैं सिवाय इसके कि तेजी से सिलेक्शन हो जाए और सर लोग आगे करें। निवडणुकीमध्ये कुणी एका व्यक्तीला फौजे केलेले नाही। त्या निवडणुकीचं आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे, निवडणूक झाल्यावर पक्षाची निर्मिती झाली आणि निवडणूक झाल्यावर मोरारजी देसाईंची निवड झाली। निवडणुकीच्या आधी मोरारजीबाईंचं नाव सुद्धा कुठं नव्हतं आणि त्यामुळे कोणाचे फौजे केले किंवा कोणाचे नाही केले त्याचे परिणाम होत असतात। लोक वजन करण्याच्या मनस्थिती वेळी आले असतील तर लोक निर्णय घेत असतात। मला स्वतःला असं दिसतंय, देश पातळीवरचे जे निर्णय घेण्याची जबाबदारी जनमानसांच्यावरती आहे, ती संधी त्यांना ज्यावेळी मिळेल त्यावेळेला त्यांचं मत, त्यांचं मान हे स्पष्ट होईल। त्याच्याबद्दल असा भाष्य करणं योग्य नाही। But there's a very interesting and absolutely contrasting strategy that you see in the BJP. They have revamped their strategy in the lead up to 2024. And an example of that can be seen in Madhya Pradesh. The BJP made it clear that for them, it's a party above person or post. The three states of the Hindi heartland have named their first-time chief ministers and have dropped senior cabinet ministers from the previous governments. 10 ministers of the Shivraj cabinet were not given any ministerial berth. They were there in the Shivraj government. Now they are just MLAs. The party also deployed union ministers in the fray, and the same former union ministers are serving in the new Mohan Yadav cabinet. The formula now appears to be that they will do whatever it takes to strengthen the party and brand BJP and not ride on popularity of any regional leaders. It's Mr. Modi, it's the party, and it's the Karyakarta. So is it the ideology or the naming of a PM face that's going to win the 2024 election? Let's just analyze this strategy. We've got Avdesh Kumar, senior journalist. Ashutosh, senior journalist, continues with us. Ashutosh ji, your first thoughts. On the one hand, you have PM face, PM face, PM face. And then on the other, you have got only Mr. Modi's face, and everywhere else, it's only the organization that matters, irrespective of who the candidate is, who's the CM. Yeah, I think every political party has a strategy on its plate. If BJP going to the elections in assembly election in Rajasthan, Madhya Pradesh, and Chhattisgarh, they did not project any face as a chief ministerial candidate. It worked for them. So Congress also Congress had gone with Ashok Gehlot and Kamal Nath. It didn't work for them. So. Which is my question. Do you think that in this obsession with who is going to be the PM face, they are actually getting it wrong? Because that has suddenly No. I think ceased to matter. They are in the process of trying to finalize whether they should go ahead with a face or they should not have any face at all. Because there is a clear divide within the India Gathbandhan, and a section of the leaders and the top leaders think that they should go ahead with the face, and others think that the issue should be more important. Because if they are going ahead with a face, then they will be they will have to compete with Narendra Modi. And in terms of the stature, in terms of being the prime minister for 10 years, it will be difficult for that face to compete with Narendra Modi. And then the whole debate will be sidetracked. So then why is there this continuing obsession of trying to project someone? That was the initial idea, right? That we'll just go ahead with a common agenda and no face. I said
there is a division within the India Gathbandhan. Like there is a leader like Mamata Banerjee and Kejriwal who think that they should go ahead with the face, and that's why they suggested Kharge's name. And but Sharad Pawar and others think that they should not go ahead with the face. So they are in the process, and I think it will take. It's not an easy question to answer. In my opinion, there should not be any face at all. ओके अवधेश जी, क्या ये स्ट्रैटेजी काम कर सकती है INDIA के कि वो छोड़ दे मुद्दा ऑफ हैविंग अ प्राइम मिनिस्टर फेस एंड जस्ट हैव अ ब्रॉडर मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज कि मोदी को हटाने के लिए ये हमारा मैसेज है? नहीं, ये तो आशुतोष जी अपना विश्लेषण दे रहे हैं। इस समय जो INDIA है उसमें अलग अलग पार्टियों के अपने अपने फेस हैं। INDIA की अभी जो बैठक है उसके एक दिन पहले TMC के नेताओं ने अलग अलग बयान दिया कि चूंकि ममता बनर्जी 7 बार की MP है, 7 टाइम्स MP है, 5 टाइम्स MLA है, 3 टाइम्स CM है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ फाइट करती हैं, तो उनको फेस बनाया जाना चाहिए। ये तो TMC की डिमांड आ गई थी। बाद में ममता बनर्जी जी ने यहां आकर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। वो एक स्ट्रेटेजी थी कि मेरा नाम प्रस्तावित हो रहा है लेकिन मैं नहीं हूं, मैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहती हूं। चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस चाहेगी नहीं। कांग्रेस के कैंडिडेट हमारे सामने है राहुल गांधी, JDU के कैंडिडेट नीतीश कुमार है, तो से अदर जितनी पार्टियां हैं उतने इनके अलग अलग के कैंडिडेट्स हैं। और तो सबसे बड़ा भय है कि नरेंद्र मोदी ने जो अपनी कार्य क्षमता प्रमाणित किया है, जो उनकी बोलने की शैली है, अगर उनके सामने कोई आएगा, जब वो अपने तर्कों से ध्वस्त करेंगे उसके कैरेक्टर को, तो उस आदमी का पॉलिटिकल लाइफ रहेगा कि नहीं रहेगा। और जो तीसरी बात इसमें आती है कि भाई नरेंद्र मोदी ने एक अचीव करके मुख्यमंत्री के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिखाया है। जब भी कोई कैंडिडेट सामने आएगा और एक आदमी 2047 का विजन दे रहा है कि हमको वर्ल्ड का सुपर पावर बनाना है, हमको अगले 5 वर्ष में देश को 3rd इकोनॉमी ले जाना है, उसके पैरेलल कौन व्यक्तित्व है जो इस प्रकार का विजन, तो देश उसकी तुलना करेगा। तो एक फियर है अंदर कि अगर किसी को बनाया गया, एक तो अंतर मतभेद है कि हम किसको मानेंगे, दूसरा एक भय भी है कि अगर हम बनाएंगे तो इन सब बातों का हमारे सामने क्या जवाब तो होगा। ये जो आपका लॉजिक है, एजेंडा तो है, तो इस लॉजिक से तो फिर नीतीश कुमार सेट बैठते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, मल्टीपल टर्म्स उनके रहे हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल हमें देखना है एज PM फेस, तो नीतीश कुमार सही बैठते हैं जो लोग बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी का भारत मॉडल भी है, नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी में जो एक अंतर्राष्ट्रीय विजन है वो भी है, नरेंद्र मोदी का एक कल्चर और सिविलाइजेशन विजन भी हमारे सामने है। और नीतीश कुमार तो निश्चित रूप से थे, लेकिन इस समय नीतीश कुमार की उनकी ही पार्टी उन पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि ये कब पाला बदल दें। और अभी भी चल रहा है कि हो सकता है वो NDA में ही आ जाए। इस समय की जो वहां स्थिति है, आज उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने त्याग पत्र दे दिया क्योंकि वो हटाने वाले थे। नीतीश कुमार इस समय भारत में मुझे लगता है द मोस्ट माने ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं, उनका क्रेडिट ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति का क्रेडिट स्वयं नहीं है, अपनी पार्टी में नहीं है, जिसके साथ वो नरेंद्र मोदी के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग उनके प्रोजेक्ट करते रहे, जिस व्यक्ति ने प्रोजेक्ट किया आज वो पार्टी में नहीं है। देखिए अखिलेश जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का विजन है, विदेश नीति में विजन है। विजन तो इतना है कि मालदीव ने आपको कहा कि आप यहां से निकल जाइए। विजन तो ये कि कनाडा आपके खिलाफ किस तरीके की बकवासबाजी कर रहा है। विजन तो ये कि अमेरिका आपसे कह रहा है कि भाई आप जांच करिए, आप हमारे लोगों क्या कर रहे हैं। देखिए विजन तो ये भी था कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। विजन तो ये भी था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट बिकॉज़ दैट्स अ वेरी स्लिपरी टेरेन। द फैक्ट मैंने पहले भी कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का, हर गठबंधन का अपना एक एजेंडा होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, इन तमाम राज्यों के अंदर बिना फेस के जा सकती, चुनाव लड़ सकती, चुनाव जीत सकती है, और उसको लगता है कि जो उस वक्त वहां की सरकारों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको मुद्दों के आधार पर परिवर्तित करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। अब ये तो उनको तय करना है। जहां तक ममता बनर्जी की बात है, अभी तक याद है कि ममता बनर्जी ने आज तक एक बार भी नहीं कहा कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, नीतीश कुमार ने एक बार भी नहीं कहा मैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है। क्योंकि ये अगर आपको याद होगा हरियाणा का जब चुनाव हो रहा था पिछली बार, जब खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, तो बीजेपी ने कहा था कि हमारे पास 5 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, और उन 5 लोगों ने मेहनत की और हरियाणा को जिताया।
आज ये इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं हो सकता? हर आदमी का मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, अपने राज्य में हम ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के लेके आए। ये भी तो एक स्ट्रेटजी हो सकती है। Okay, maybe they can have an alternative strategy, either model that can work for them. Whatever works, may the best man win. But these are still interesting straw in the winds to pick up. Thank you very much, Avdesh ji, Ashutosh ji, for joining us with your wisdom. Thanks for watching.